हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड साइंस 1 का चैप्टर नंबर 13, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, पार्ट 1। दिस इज अ केमिस्ट्री चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर वी आर गोइंग टू डू। अब ये स्टार्टिंग में कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, मतलब कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ऐसा क्यों है हम लोग वो अभी देखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। और ये बहुत ही ह्यूज चैप्टर है, इसलिए हम इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो एक्चुअली अ कार्बन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। सो लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। Let's look forward to some questions which will which will make us recall about some points of chemistry. चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एलिमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे, कार्बनिक एलिमेंट है तो अब क्या एलिमेंट है वो भी जानना चाहिए हमें। तो अब सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सम सिंपलर कंपोनेंट्स बाय एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एलिमेंट। An element has only one type of constituents. Then what are the different types of elements में आता है? First metals, example gold, silver, copper, tin, etc. Then comes non-metals, example carbon, sulfur, phosphorus, etc. Then comes the third one, metalloids, example silicon and germanium, etc. Then so this was the element and different types of element. In normal language, element is a element has only one types of atoms in it. Okay, मतलब from one, it's not a compound. Abhi what happens in compound? There are two different types of atoms. Silicon and aluminium, या फिर आप बोल सकते हो sodium chloride Na and Cl. That's a compound because two different atoms have combined. But in an element, only one atom is there. Sodium is an element. Okay. What remains behind on complete combustion of any organic compound? So, any organic compound on complete combustion produces carbon dioxide, CO2, and water H2O. What type of element is carbon? Give some information about it. अब ये चैप्टर के सबसे रिलेटेड है कि क्या कैसा टाइप का कार्बन है एक एलिमेंट। तो हमको तो पता ही है कि कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। Carbon is found in nature in free state as diamond and graphite. It is also found in the combined state in the form of compounds such as petroleum, natural gas, carbon dioxide, etc. Okay, its chemical symbol is C. That all we will see now in the chapter itself. So मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि और रिकॉलेशन भी कर लिया कि एलिमेंट क्या होता है, what remains behind on complete combustion, which is a important topic also, and what type of element is carbon that we saw. Now let's see about give some information about it. Carbon. Now let's get some basic information about carbon. The element carbon is available abundantly in the nature and occurs in free as well as in the combined state. So free state में भी मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन है, और combined मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन है, कार्बन के साथ कुछ और भी है। लाइक कंबाइंड स्टेट बोल सकते हो CO2 गैस, उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है। In this chapter, let us study the properties of the non-metallic element carbon. पहले कुछ basic information. Symbol of carbon is C. Atomic number is 6. Atomic mass is 12. Electronic configuration. अब जैसे कि एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 4, और वैलेंसी 4 बिकॉज लास्ट वैलेंस शेल में है ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, so वैलेंसी होगी 4 and it is a non-metallic element. So these are very basic information about carbon which we must know. Here I have given a rough figure of carbon, I think so, because carbon has not a proper shape. Now let's learn about the occurrence of carbon. Where is carbon there
and how it was occurred. The name carbon is derived from the Latin word carbo, meaning coal. So carbo is a Latin word, उससे carbon name दिया गया था, and the meaning of the word carbo is coal. Carbon is found in nature in free as well as compound state. That only I told now. Like example, compound state example is CO2, and free state I think so diamond. Carbon in the free state is found as diamond and graphite. तो मैंने बोला ना कि डायमंड और ग्राफाइट में एकदम फ्री स्टेट ओनली कार्बन इज देयर. तो आपको थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा कि डायमंड जो कि ट्रांसपेरेंट है वो एक कार्बन से बना है. आपको ये ताज्जुब लगता होगा क्योंकि कार्बन हमेशा हम लोग इमेजिन करते हैं एक ब्लैक ब्लैक सी थिंग. दैट वी विल लर्न इन दिस वीडियो इटसेल्फ इन फॉरवर्ड and in the combined state in the following compounds as carbon dioxide and in the form of carbonates such as calcium carbonate, marble, calamine. So these are some combined states of carbon. Fossil fuel is again a combined state of carbon, coal, petroleum, natural gas. Carbonaceous nutrients, carbohydrates, proteins, fats, these all are combined states of carbon. Natural fibers. Some natural fibers are also combined states of carbon, like cotton is a combined state of carbon, wool, silk also. Now let's learn a little bit about it. In the Earth's crust, carbon is present to the extent of approximately 0.27% in the form of carbonate, coal, petroleum. So हमारे जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट हुआ है approximately 0.27% only this much in the form of carbonate, coal और पेट्रोलियम. तो हमारे ज़मीन के अंदर बहुत ओनली 0.27% है कोल पेट्रोल ये सब, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं. तो उनका निकलना बहुत कम होता है. So we should use it properly and save it for future also. In atmosphere, the proportion of carbon in the form of carbon dioxide is approximately 0.03%. So atmosphere में air में carbon dioxide का क्या proportion होता है? That is 0.03%. Some types of plants which grow on the ocean floor convert carbon in marine water into calcium carbonate. That's a new fact. Now let's learn about some properties of carbon which are going to be more and more. Allotrophic nature of carbon, very important. What is allotropy? अभी allotropy मतलब आप क्या बोलोगे? Some elements occur in nature in more than one form. अब कुछ elements एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म्स में कुछ दिखते हमें नेचर में. The chemical properties of these different forms are the same, but their physical properties are different. मतलब वो फिजिकली डिफरेंट है लेकिन केमिकली उनके पास जो भी प्रॉपर्टीज वो वही है. ओके, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, केमिकली उनकी प्रॉपर्टीज सबकी सेम है लेकिन फिजिकली दिखने में डिफरेंट होते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. मतलब एक एलिमेंट के बहुत सारे दूसरे फॉर्म्स है जो जिनकी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उन्हें एलोट्रॉपी बोलते हैं. उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एलोट्रॉपी. Like carbon, sulfur and phosphorus also exhibit allotropy. तो कार्बन के साथ ही सल्फर और फॉस्फोरस भी एलोट्रॉपी करते हैं. अब हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोप्स कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स है उनके बारे में बात करेंगे. पहला, कार्बन के एलोट्रोप्स के दो टाइप्स है. पहला है ए क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एंड सेकेंड इज बी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. ओके, तो हम देखेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में कौन से एलोट्रोप्स आते हैं कार्बन के. अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. मतलब एक डेफिनाइट अरेंजमेंट है, एकदम प्रॉपरली एक कोई शेप है उसके पास. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. A crystalline form has a definite geometrical shape, sharp edges and plane surfaces. एक definite geometrical shape है, sharp edges भी है और एक plane surface भी है, एक proper structure. Carbon has 3 crystalline allotropes. तो कार्बन के पास 3 crystalline form वाले allotropes है. पहला देखते हैं. पहला है डायमंड. हमने मैंने आपको बोला था कि हम आगे पढ़ेंगे डायमंड के बारे में.
So diamonds are found in India mainly in Golconda, Karnataka, and Panna, Madhya Pradesh. Panna is in Madhya Pradesh and Golconda is in Karnataka. Diamonds are also found in South Africa, Brazil, Belgium, Russia, and America. Very important. Question comes that in India, where diamonds are mainly found? Answer will be Golconda in Karnataka and Panna in Madhya Pradesh. And one more question can comes where in other countries diamonds are found? Answer will be South Africa, Brazil, Belgium, Russia, and America. So this was about the occurrence of diamond. Now this is the structure of diamond. थोड़ा सा दिखने में अलग लग रहा है लेकिन देखते हैं इसे. In diamond, every carbon atom is bonded to 4 neighboring atoms by covalent bonds. So यहाँ पर एक covalent bond. अब covalent bond के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ. Covalent bonds are nothing but अभी हम लोग को आयोनिक बॉन्ड्स में क्या होता था, एक एटम देता था और एक एटम लेता था. मतलब दूसरे एटम को कुछ देना ही नहीं था, उसको सिर्फ लेना था. पहला एटम सिर्फ दे रहा है और कुछ ले नहीं रहा, और दूसरा एटम सिर्फ ले रहा है लेकिन कुछ दे नहीं रहा. लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स में होता है कि दोनों ही शेयर करेंगे, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो वो देगा भी और लेगा भी, और दोनों ही साइड में देगी भी और लेगी भी. ओके, दैट इज शेयरिंग. In diamond, every carbon atom is bonded to 4 neighboring atoms by covalent bonds. तो हर एक कार्बन एटम दूसरे तो हर एक कार्बन एटम हम अपने आसपास 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं डायमंड में. ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इन चारों से बना रहा है अपना कोवेलेंट बॉन्ड. फिर ये 1 2 3 4 से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इसी तरह ऐसा ऊपर से नीचे से स्ट्रक्चर बन रहा है जो डायमंड का होता है. ड्यू टू दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायमंड बिकम वेरी हार्ड. तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से डायमंड बहुत ही हार्ड है. एंड दैट इज द फैक्ट दैट डायमंड इज वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड. Properties of diamond, let's see. Brilliant and pure diamond is the hardest natural substance. That only I told. The pure diamond and the brilliant diamond is the hardest substance of hardest natural substance. The density of diamond is 3.5 gram per centimeter cube. Very important. The melting point of diamond is 3,500 degrees Celsius. When diamond is heated at 800 degrees Celsius in the presence of oxygen, CO2 is given away. तो जब डायमंड को हीट किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस में हीट पे, तो CO2 को ये दिया जाता है, इट्स गिवन आउट, बट इट शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट इज एरोबिक कंडीशन. In this process, no other product besides CO2 is formed. Diamond does not dissolve in any solvent. Okay, diamond कभी dissolve नहीं होगा. Acids or bases have no effect on diamond. Acid या base का कोई भी effect नहीं होगा diamond पे. Diamond is a bad conductor of electricity as if does not have free electrons. उसके पास free electrons ही नहीं है, इसलिए वो एक bad conductor है electricity का. वैसा क्यों? क्योंकि देखो, कार्बन की क्या है वैलेंसी? वैलेंसी है 4. और अब हमने देखा था कि एक कार्बन एटम अपने साथ 4 कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स शेयर कर रहा है, तो सबको एक 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 दे देगा, तो अभी सब निकल गए, तो अभी एक भी बचा ही नहीं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स. तो सब ऐसा ही करेंगे ना, हर एक ऐसे ही अलग अलग 4 सबको दे देगा. सारे कार्बन एटम्स अपने 4 वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे. अभी कैसे होगा? अभी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, सब शेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे फ्लो? इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, सब बॉन्ड में आ जाते हैं, इसलिए वो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. What are the uses of diamond? Diamonds are used in glass cutting and rock drilling machines. आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन हाँ, डायमंड यूज़ किया जाता है ग्लास कटिंग और रॉक ड्रिलिंग में भी. डायमंड्स आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, दैट ऑल वी नो. डायमंड नाइव्स आर यूज्ड इन द आई सर्जरी. जो आई सर्जरीज होती है उसमें डायमंड के नाइव्स यूज़ करते हैं. डायमंड डस्ट इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड्स. एक डायमंड का डस्ट दूसरे डायमंड को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है.
Diamond is used to make windows, giving protection from radiation in space and artificial satellites. Artificial satellites में diamond की windows बनाई जाती है ताकि protection मिले radiation से. अब दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का ग्रेफाइट. हमने पहला देखा डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इन रशिया, न्यू जीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया. The lead used in pencil is made by mixing graphite with clay. This process was discovered by Nicolas Jacques Sente in 1795. So, ग्राफाइट. अब ग्राफाइट का सबसे इजी एग्जांपल, एक पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्राफाइट से बनी होती है. सो दैट इज द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ ग्राफाइट. वो मेनली फाउंड होता है नेचुरल स्टेट में रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंडिया में. स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्राफाइट का. एवरी यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आइडिया भी मिल गया होगा आपको. Every carbon atom in graphite is bonded to 3 other carbon atoms in such a way that a hexagonal layered structure is formed. Okay, so ऐसे एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से बॉन्ड करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. और डायमंड में क्या होता था, एक कार्बन एटम दूसरे 4 से करता था, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड शेयर करता है. ओके, और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज 6 लेयर स्ट्रक्चर. A graphite crystal is made up of many sheets or layers of carbon atoms. These layers slip over each other by applying pressure. One layer of graphite is called graphene. So graphite की एक लेयर को हम बोलते हैं ग्राफीन. ओके, और बहुत सारी लेयर्स होती है, वो स्लिप करती है ओवर ईच अदर by applying pressure. ओके, यहाँ पर आप देख ही सकते होंगे इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ग्राफाइट का. Now let's see the properties of graphite. First is graphite found in nature is black, soft, brittle and slippery. Black color is black. It is soft, brittle मतलब easily break किया जा सकता है, slippery. Then inside each layer of graphite, free electrons move continuously within the entire layer. That is why graphite is a good conductor of electricity. अब इसका भी रीजन मैं बताता हूँ. अब ग्राफाइट एक ग्राफाइट में एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम्स के साथ करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. अब हम कार्बन की वैलेंसी थी 4, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 गए तो एक बच जाता है जो कि फ्री रह जाता है. वैसे ही हर एक कार्बन एटम का एक बच जाता है इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री रहता है, इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है. Due to the layered structure, graphite can be used for writing on paper. The density of graphite is 1.9 to 2.3 gram per centimeter cube. Graphite does not dissolve in most solvents. वो किसी भी solvent में जल्दी से dissolve नहीं होता. Now next crystalline form which is newly discovered is fullerenes. It is the newest crystalline form of कार्बन. फुलरेंस, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हम पढ़ते हैं. फुलरेंस एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज रेयरली फाउंड इन नेचर. बहुत कम फाउंड किया जाता है इसे. इट इज फाउंड इन सूथ एंड इन इंटरस्टेलर स्पेस. द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फुलरेंस इज Buckminster fullerenes, that is C60. This allotrope of carbon is named fullerenes after the architect Richard Buckminster Fuller because the structure of C60 resembles the structure of the geodesic dome he designed. तो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट है रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, उनके नेम के पीछे उनके नेम पे ही रखा गया है, आफ्टर द नेम ऑफ दिस एज फुलरेंस, बिकॉज क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ C60 रिसेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ द जियोडेसिक. तो जियोडेसिक डोम की जैसा ही उनका स्ट्रक्चर, ये फुलरेंस का भी स्ट्रक्चर है जो कि फाउंड हुआ, इसलिए उनके ही नाम पे रखा, क्योंकि जियोडेसिक डोम बनाया गया था इनके हाथ, was designed.
Harold Kroto, Robert Cole and Richard Smalley were given the Nobel Prize in Chemistry 1996 for the discovery of this carbon allotrope. तो इन तीनों ने ही मिलके इसका ये किया है, इसके वो डिस्कवर किया है। और रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर के नाम पे क्यों रखा गया है? ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, लेकिन उसने एक बनाया था डोम, जियोडेसिक डोम, उसी की तरह वो दिखता था वो पहला फुलरेंस C60, इसलिए। Then for the discovery of this carbon allotrope fullerenes, C60, C60 and C70, C76, C82 and C86 are other examples of fullerenes. They are molecules occur in small numbers in soot. Bucketubes and buckyballs are two fullerences. This is bucketubes and this is buckyballs. Buckyballs बोला जाता है C60, वही हमने अभी जो पढ़ा। ओके तो अभी इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरेंसेस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स। मैंने बोला था ना, बकी बॉल्स और बकी ट्यूब्स के में ऐसे दिखते हैं, वो बकी ट्यूब्स ऐसे दिखती है और बकी बॉल्स ऐसे है। देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ फुलरेंस। बाप रे, इतने सारे कार्बन एटम्स हैं। Fullerences are soluble in organic solvents such as carbon disulfide, क्लोरोबेंजीन। तो ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है फुलरेंस। इसके यूजेस, फुलरेंसेस आर यूज्ड एज इंसुलेटर्स। ओके, तो वो इंसुलेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं। और फुलरेंसेस आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन वाटर प्योरिफिकेशन। कैटलिस्ट यानी कि वो पूरे प्रोसेस में मदद करने वाला एक ऐसा एलिमेंट कुछ डाल देते, उसे बोलते हैं कैटलिस्ट, पूरे एक्सपेरिमेंट में। At a certain temperature, fullerenes exhibits superconductivity. So superconductivity भी वो exhibit करता है। With this I end this video. हमने अभी सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स देखे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और भी बहुत कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और इस चैप्टर के नोट्स भी आपको मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट में।